location. What is variable, guys? Fast. Variable is a name given to the memory location. Variable What is variable? is a name given to the memory location. What is data type? type of data present in variable. Very good. What is my variable? Very good. Everyone, what is my variable? Variable is a name Is a name given to the location. Memory location. What is variable? Variable is a name given to the memory location. What is variable? Variable is a name given to the memory location. Memory location. Okay, so that what we have seen. अब आगे बढ़ते हैं. So हमने variable को discuss किया. Like a variable is a name given to the memory location. Now variable having a, there are two types of data type. Variable is a name given to the memory location and data type is a type of data present in variable. ध्यान देना. So data type, how, what are the different types of data type we have? What are the different type of data type we have? We have discussed a data type, but we haven't discussed about type of data type. So we actually have a two type of data type. First one is, yes, Primitive data type. primitive. First one is Samiksa. Primitive. Primitive. Second one is Non-primitive. non-primitive. Okay, those who are new. We have a two types of data type. First is primitive type. Okay, primitive. And second one is a non-primitive. Don't worry, we will discuss everything. आपको ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा, समझेगा. Okay, take time. Non-primitive. Primitive. So I have said like we have a two types of data type. First one is primitive and second one is non-primitive. And now what is this primitive and what is this non-primitive? ध्यान देना. What is this primitive and what is non-primitive? थोड़ा इसको आराम से समझते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है. आराम से, बड़े आराम से. ठीक है. तो we have two types of data type. First is primitive, second is non-primitive. Primitive data types are those data type which is predefined. Okay, समझ में आ रहा है? Primitive data types are those data types which is predefined. I will tell you what is the meaning of this predefined. So primitive are those which is predefined. But what is the meaning of this? Take a time. Let's understand. What are the different primitive data type we have? So we have a boolean, we have a byte. Okay, boolean, byte, short, int, long, float, डबल, कैर. ये क्या है? प्रीमिटिव है. मैंने तो ये बोल दिया कि प्रीमिटिव इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप विच इज अ प्री डिफाइंड. देखो प्री डिफाइंड का मतलब क्या है कि विच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, यानी जैसे जावा मीन्स जावा हैज ऑलरेडी given this, it is given by java for us. But still I am not understanding what is the meaning of this. प्रीडिफाइंड का मतलब होता है इट इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कि इसमें क्या वैल्यू आएगी. इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि इसमें आप क्या स्टोर करने वाले हैं. इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि आप बाइट के अंदर क्या स्टोर करने वाले हैं, शॉर्ट के अंदर क्या स्टोर करने वाले, इंटीजर के क्या स्टोर करने वाले. इट इज ऑलरेडी डिफाइंड. इट इज ऑलरेडी डिफाइंड मीन्स दिस डेटा टाइप इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड. इसका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं ये पहले से डिफाइंड है. इसका मतलब क्या है कि मैंने इफ आई विल से बुलियन, तो मुझे पहले से इसमें पता है, प्री डिफाइंड है कि इसमें एक तो ट्रू वैल्यू स्टोर होगी, एक तो फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी. सेकंड थिंग, बाइट में भी एक नंबर स्टोर होगा, ये भी प्री डिफाइंड है. शॉर्ट में भी एक नंबर स्टोर होगा, ये भी प्री डिफाइंड है. स्ट्रिंग में भी एक नंबर स्टोर होगा, ये भी इंटीजर में. ये सारे प्री डिफाइंड है, ये सारे से प्री डिफाइंड. इसका मतलब क्या है, ये पहले से ही पता है कि इसमें क्या वैल्यू आने वाली है. प्री डिफाइंड. कोई भी बोलेगा बुलियन में क्या आएगा तो वो बोल देगा प्री डिफाइंड. इसमें दो ही टाइप की वैल्यू आएगी, एक तो ट्रू है या फॉल्स. प्री डिफाइंड है इसकी. आगे जाके ये जो डेफिनेशन और अच्छे समझेंगे और अच्छे समझ में आएंगे. तो प्री डिफाइंड डेट what is my primitive data type? Primitive data types are those data type which is primitive, which is predefined, which is already defined by java. डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि इसने उन्होंने डिफाइन ही किया है कि जो बुलियन वेरिएबल है, बुलियन डेटा टाइप है, उसमें क्या आने वाला है, बाइट में क्या आने वाला है, शॉर्ट में क्या आने वाला है, इंटीजर में क्या आने वाला है. एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड. उन्हें सबसे पहले उन्होंने पहले से प्री डिफाइन किया कि अच्छा इस इन डेटा टाइप से ये वैल्यू आने वाली है. इट इज प्री डिफाइंड. नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव आर दोज डेटा टाइप विच इज ए यूजर डिफाइंड. नॉन प्रिमिटिव में
ये ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं। लाइक व्हाट आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वी हैव अ स्ट्रिंग व्हिच इज अ नॉन प्रिमिटिव। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, पक्का मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हम तामझाम करे जा रहे हैं। ये प्री डिफाइंड है, नॉन प्रिमिटिव है, ये यूजर डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है, यानी हो क्या रहा है। हो ऐसा रहा है कि जब मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो स्ट्रिंग में ऐसा कुछ प्री डिफाइंड नहीं है कि आप उसमें यही स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज डिपेंड ऑन द यूजर, ऑन इट इज डिपेंड ऑन अस कि हम इसके अंदर क्या स्टोर करवाने वाले। आप स्ट्रिंग के अंदर एबीसी स्टोर कर सकते हैं, आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर, इसमें कोई प्री डिफाइंड नहीं है, कोई पहले से ही डिफाइंड नहीं है कि इसमें यही स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग में हम बोलते, जैसे आप नंबर है तो आप ऐसा, वो तो ऐसा ही बोल सकते हैं आपके नंबर में तो ट्रू फॉल्स है, ये भी प्री डिफाइंड ही है। अब स्ट्रिंग में भी हम स्ट्रिंग ही डालेंगे ना। स्ट्रिंग यानी क्या होता है, आप उसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डालेंगे तो वो भी प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन्होंने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि बुलियन है तो उसमें ट्रू और फॉल्स आएगा। बाइट में तो बाइट मैंने बोल दिया, तो बाइट में भी उन्होंने प्री डिफाइंड वैल्यू दी है कि वन -120 -127 टू वन, सॉरी, -127 टू 128। इस इस रेंज की वैल्यू बाइट में आएगी, यानी एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, एवरीथिंग इज लाइक कितना साइज कंज्यूम करेगा, कितना रेंज होगा उसका, सारी चीजें गिवन। अभी फिर भी मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है। चलो अब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आएगा ध्यान में। ठीक है। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स आर दोस डेटा टाइप व्हिच इज अ प्री डिफाइंड। वो कितना साइज, देखो हमने लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हर वेरिएबल एक मेमोरी में स्पेस लेता है। समझ में आ रहा है। एवरी वेरिएबल टेक्स अ स्पेस इनसाइड अ मेमोरी, इज दैट क्लियर टू यू। एवरी वेरिएबल टेक्स अ स्पेस इनसाइड अ मेमोरी, इतना क्लियर है, इतना बता दो, इतना क्लियर है। यस गाइस, इज दैट क्लियर टू यू, बताइए। सिया, साक्षी, सृष्टि, यस, समीक्षा। एवरी वेरिएबल टेक्स अ स्पेस इनसाइड ए मेमोरी, बट हाउ मच स्पेस, हमने उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। स्पेस के बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। धीरे धीरे करेंगे आगे जाके, धीरे धीरे आप स्पेस की तरफ भी आएंगे। प्री डिफाइंड जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। इसको और अच्छे से समझो, अब आएगा समझ में। गाइस, थिंग्स टेक्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड दैट। I will not say that you are very slow. Your machine is very hard. Your hard disk is very slow. I will not say. It takes a time to understand. So data type हमारे पास टू टाइप के होते हैं, which is a primitive and non-primitive. So primitive क्या होते हैं? In Java, primitive data types are referred to the basic predefined data types that represent simple values. There's these data types are not object, they do not belong to any class. There are 8 primitive data types, यानी predefined data type ऐसे होते हैं कि जो पहले से ही predefined है, यानी ऐसे data type जो कि पहले से predefined है। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, when we will create an object, so object is not a predefined, we are creating an object। अब ये जो ऑब्जेक्ट वाला अभी जो मैंने बोला कि जब हम क्लासेस के साथ वर्कआउट करते हैं, यानी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम खुद से बनाते हैं। वी आर क्रिएटिंग दोज डेटा टाइप फ्रॉम स्क्रैच, वी आर क्रिएटिंग इट, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड। सो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि विच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, कि उनके अंदर उसका टाइप क्या होने वाला है, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होने वाली है, उसका रेंज क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एवरी वेरिएबल, एवरी डेटा टाइप हैज अ रेंज। अब मैंने आपको रेंज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, मत समझो रेंज की पर्टिकुलर जो वेरिएबल है। जो अगर अपन बाइट ले रहे तो बाइट में कितना रेंज का नंबर स्टोर रहा है उसको छोड़ दो। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में यानी ऐसा होता है कि जावा ने ऑलरेडी हमें कुछ ऐसे डेटा टाइप दिए हैं जिनका एक नेचर फिक्स है, यानी उनका टाइप फिक्स है कि अच्छा इसमें ये स्टोर होने वाला है, उसका रेंज क्या होने वाला है, उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये सारा स्टोर है। वो कितना साइज कंज्यूम करेगा वो भी सारा फिक्स है। जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना उसका सारा ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि अच्छा ये करेगा, इसमें ये वैल्यू आएगी, इसका रेंज ये होगा, इसका टाइप ये होगा, सारी चीजें जो है ना वो सारी की सारी जो है प्री डिफाइंड है। सो वी कैन से अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोस डेटा टाइप विच इज अ प्री डिफाइंड। समझ में आ रहा है। विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, सारी चीजें जो भी उस वेरिएबल के ब्लूप्रिंट में आएगी। जब हम आगे आगे जाके इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करेंगे तो ये चीजें क्लियर होगी। ओके। जब भी प्रिमिटिव डेटा से बोलते हैं तो उसका जो सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स है सारे के सारे पहले से ही प्री डिफाइंड है। ओके। जैसे अगर अगर एक एग्जांपल लें,
तो जैसे भी हमारे इधर एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसे समझ में आएगा। जैसे भी किसी के घर पे कोई यानी लड़का होती है लड़की होती है, तो पहले से ही प्री डिफाइंड कर लेते हैं, ये तो डॉक्टर ही बनेगी, ये तो इंजीनियरिंग ही बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? पहले से ही प्री डिफाइंड है। अब इस वो जो एग्जांपल इसमें कैसे डाले, जो भी डेटा टाइप इसमें है इनका पहले से नेचर जो वो पहले से प्री डिफाइंड है कि इसमें किस टाइप का डेटा आएगा, रेंज क्या होगी, किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर आएगी, और कितना स्पेस ये कंज्यूम करेगा, ये पहले से ही डिफाइंड है। उसको छोड़ के अगर आप उसको वो जो प्री डिफाइंड जो बिहेवियर है जो पहले से उन्होंने प्री डिफाइंड कर रखा है, अगर वो उसको छोड़ के अगर आप कुछ दूसरी वैल्यू डालेंगे तो वो देगा एरर। तो प्री डिफाइंड डेटा वैसे होती है कि जो पहले से ही प्री डिफाइंड है कि इसमें यही वैल्यू आने वाली है। ओके। और दूसरी चीज, ये किसी भी दिस डेटा टाइप आर नॉट ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट बिलोंग टू एनी क्लास। देखो आगे जाके हम ऑब्जेक्ट के साथ वर्कआउट करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग, और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी देखेंगे। अभी के लिए ऐसा समझना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप विच इज प्री डिफाइंड, जो कि पहले से ही जावा ने प्री डिफाइंड करके रखे हैं कि ये हमारे डेटा टाइप, अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो ये स्टोर करो, ये यूज करो, आपको पॉइंट की वैल्यू स्टोर करना है तो ये यूज करो, यानी सारा फिक्स है ना। यानी हम उसको थोड़ी बना रहे हैं, उन्होंने पहले बनाया कि आपको ये स्टोर करना है तो ये यूज करो, वो यूज कर, ये डालना है तो वो यूज करो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। कैरेक्टर यूज कर, कैरेक्टर अगर आपको डालना है, कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर का डाटा यूज करो। उन्होंने बता दिया, डिफाइंड कर दिया पहले से ही, प्री डिफाइंड, प्री यानी पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि ये डेटा टाइप्स है, इसमें किस किस टाइप की वैल्यू आएगी, उसका स्पेस क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, सारा का सारा पहले ही पिक्चर बना हुआ है, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी इधर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे होते हैं जो कि हम खुद से बनाते हैं। ओके। सो द स्ट्रिंग क्लास इन जावा डू नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंस्टेड क्लास प्रोवाइडेड बाय जावा। देखो, सो नॉन प्रिमिटिव ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं, हम खुद उनको बनाते हैं, वी आर क्रिएटिंग दैट। सो स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। बिकॉज अगर हम स्ट्रिंग के बारे में बात करें तो स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल दो, कोई भी फर्क नहीं, आप स्ट्रिंग में नंबर भी डाल दोगे ना वो ले लेगा। तो ये हरकत हमने पहले करी नहीं है। बट आप स्ट्रिंग में नंबर भी डालेंगे तो वो ले लेगा, बट वो प्री डिफाइंड नहीं है। स्ट्रिंग में आप क्या डालेंगे प्री डिफाइंड बिल्कुल नहीं है, उसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आना तो चाहिए। ओके। और स्ट्रिंग में हमें ये भी नहीं दिया है कि वो कितना रेंज तक नंबर, कितना रेंज तक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर पाएगा। और कलेक्शन कैरेक्टर यानी क्या एक्चुअली वो स्टोर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर तो बोल दिया मैंने कि स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आएगा, बट क्या आएगा एक्चुअली वो फिक्स नहीं है, वो आप खुद से डाल सकते हो। आप एबी से डाल दो, एक्स वाई जेड डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो आपके ऊपर है, इट इज यूजर डिफाइंड। सो एंड वन मोर थिंग, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करते हैं। ये आगे जब ऑब्जेक्ट और क्लासेस समझेंगे तब ये पॉइंट में आपको टच करूंगा कि ऑब्जेक्ट इससे किस तरह से रिलेटेड है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इस तरह के डेटा टाइप होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि ये है भाई। आपको अगर कुछ भी इसमें से कुछ वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो आपको डालना है, सपोज मेरे को कैरेक्टर स्टोर करना है, तो प्रिमिटिव बोल दिया अरे मेरे पास पहले से कैरेक्टर का डेटा टाइप है, मैंने पहले ही बना दिया, आप मत ध्यान मत दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले से हमने बना दिया, उसमें आप डाल दो। ओके। तो उन्होंने पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स करी हुए हैं, यानी पहले से ऐसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप दिए हुए हैं जो कि हम डायरेक्टली उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो किस टाइप की वैल्यू, वो भी पहले से ही डिफाइंड है कि भाई आप यही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उससे उससे अलग आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सारा का सारा प्री डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड ये जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं इसमें कोई प्री डिफाइंडनेस नहीं है, इट इज नॉट प्री डिफाइंड, इट इज अ यूजर डिफाइंड कि आप इसके अंदर क्या डालेंगे उस पर डिपेंड होता है। जैसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप यानी ऐसा समझ लो कि उन्होंने हमें दिए हैं और हमें उनका रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम जैसे उन्होंने बोला है कि इसमें ये स्टोर होगा भाई, ओके, और हमने उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना है ना, जैसे उन्होंने बोला वैसा ही हमें स्टोर करना पड़ेगा। उन्होंने सारा स्ट्रक्चर बना के रखा है, और अगर उस स्ट्रक्चर से हम इधर उधर थोड़ा भी जाते हैं तो हमको मिलेगा एरर। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, आप अपने मन से कुछ बना सकते हो, क्रिएटिंग यूजर डेटा टाइप यानी यूजर डिफाइन, आप उसमें कुछ भी डाल दो ना। नॉन प्रिमिटिव डेटा पर यूजर डिफाइन, आप उसके अंदर क्या जो भी डालोगे वो ले लेगा। तो इस तरह से होता है। नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता है, वो जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो ही लेगा। अब आप अगर मैं ऐसा ऐसी ऐसी हरकत करता हूँ, कैसी हरकत, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक हरकत मैं करता हूँ यहाँ पे, जो कि आप बोलोगे कि मैं ये नहीं कर सकता और ये क्यों मुझे एरर देगा। ओके, ध्यान दो। सृष्टि, ओके, सो इट विल गिव मी एरर। सी व्हाई इट विल गिव मी एरर। अगर मैं बुलियन में
नंबर, अगर मैं बुलियन में कैरेक्टर ए स्टोर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यस गाइस, व्हाट आई विल एरर, गेट? एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा एरर? बुलियन ट्रू और फॉल्स से एक्सेप्ट कर सकता ट्रू है। और फॉल्स ही है। अच्छा, आपने बोला, वेरी गुड सृष्टि, यू आर वेरी ब्रिलियंट। आपने बोला कि बुलियन में ट्रू और फॉल्स दोनों ही स्टोर होता है। तो आपने आपने जो अभी बोला एक लाइन कि बुलियन में क्या स्टोर होता है, एवरीवन व्हाट 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 काइंड ऑफ वैल्यू कैन स्टोर इन अ बुलियन? ट्रू और फॉल्स। इसको छोड़ के और कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं। इसको छोड़ के? अच्छा, तो बुलियन में ओनली ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये क्या हो गया? प्री डिफाइंड हो गया। समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ध्यान में कि बुलियन में आप ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करवा सकते हो। ये क्या हो गया? पहले से ही डिफाइंड है भाई। ये आप उसमें ऐसी, ये जो हरकत मैंने करी, ये नहीं कर सकते आप। वो बोल रहा है कि आप, मैंने तो पहले से प्री डिफाइंड आपको बताया कि इसके अंदर ट्रू और फॉल्स आता है, तब भी आप अपने एक्स्ट्रा लॉजिक लगा रहे हो। ऐसा मत करो भाई। बोल रहा है कि पहले से प्री डिफाइंड है, इसके अंदर क्या आएगा? पहले से प्री डिफाइंड है, और आप इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर में ए नहीं डाल सकते। ये क्या है? ये जो हरकत कर रहा हो एक्स्ट्रा, ये इसके अगेंस्ट रूल जा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है पहले से प्री डिफाइंड है कि इसके अंदर आप क्या डालते हो। जो शॉर्ट है उसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अगर मैं शॉर्ट के अंदर ट्रू डालूंगा मेरे को आएगा एरर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। शॉर्ट के अंदर ट्रू नहीं डाल सकता मैं, बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स डाल सकता हूँ, और शॉर्ट के अंदर ट्रू नहीं डाल सकता। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। अब मैं स्ट्रिंग के अंदर ट्रू डाल दूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं आएगा। डाल दो ट्रू, डाल दो 1 2 3, डाल दो 0.222, कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग इज यूजर डिफाइंड। हाँ, एक आपको कंडीशन है, डबल कोट लगाना पड़ेगा। उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, वो एज इट इज ले लेगा, वो सोचेगा ही नहीं। वो बोलेगा आने दो, आने दो भाई, जितना आप दे, जितना आपको कुछ भी डालना है डाल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं है। मेरा काम है जो भी डेटा मेरे को आ रहा है उसको होल्ड कर लेना, और डबल कोट के अंदर जितना भी आप डेटा पास करेंगे वो ले लेगा। अब वो आपके अंदर है, आप कुछ भी डाल दो। वैसे जो स्ट्रिंग में तो हमें हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आना चाहिए, बट आप कुछ भी डाल दोगे उसको, वो वैसे का वैसे ले लेगा। बोलता है यूजर डिफाइंड है, आप डालो कुछ भी, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्री डिफाइंड ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसमें ऑलरेडी सारा का सारा पैरामीटर जो सारा सेट है, कि क्या आएगा, कितने रेंज तक आएगा, कितना साइज कंज्यूम करेगा, सारा फिक्स है। वैसे स्ट्रिंग का जो स्पेस कंजम्पशन है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी स्पेस पे बिल्कुल फोकस मत करो। जो हर एक डेटा टाइप है, जितने भी डेटा टाइप है, जितने भी यहाँ पे डेटा टाइप बन रहे हैं, इनका स्पेस जो है वो पहले से फिक्स है। इनका क्या क्या पैरामीटर फिक्स है, कि ये कितना रेंज तक नंबर स्टोर करेगा, और कितना साइज इसका कितना साइज ये कंज्यूम करेगा, है ना, कितना स्पेस ये लेगा मेमोरी में, ये सारा फिक्स है। कितना रेंज तक नंबर स्टोर करेगा, और कितना साइज इसका है, इसमें ये फिक्स नहीं है भाई। इसमें फिक्स ही नहीं है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से, आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर, उसके ऊपर उसका रेंज और उसका साइज जो है डिपेंड है। आप कितना भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है हमें जो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड है कि आपको भाई ये करना है, पहले से प्री डिफाइंड है। यहाँ पे नहीं है इधर। इसका रेंज और साइज है वो प्री डिफाइंड नहीं है, कोई बता नहीं सकता इसका साइज और प्री डिफाइंड है या नहीं है। यानी इसका साइज और स्पेस कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है। हाँ, हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट दिस, बट एग्जैक्ट मैं बता ही नहीं सकता, कि क्योंकि ये यूजर पे डिपेंड करेगा ना, वो क्या कर रहा है। मैं कैसे बताऊं कि इसका जो स्पेस और साइज कंजम्पशन इतने है। अब स्पेस और साइज कंजम्पशन है, इसको छोड़ दो, बताने की अभी यहाँ पे इतना समझना है। यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव टाइप्स ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं गाइस? विच इज ऑलरेडी ऑलरेडी प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड प्रीडिफाइंड। इसका मतलब क्या, उसका नेचर जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। उनका नेचर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। इसका मतलब, जैसे जैसे टॉकिंग अबाउट भी, जो अगर मैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हूँ, और देखो यहाँ पे मैं एक प्रिमिटिव टाइप हूँ, ओके। मैं एक प्रिमिटिव, देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हूँ, प्रिमिटिव, ओके। कौन हूँ मैं? मी। अब मेरा नेचर क्या है, ओके। मैं हूँ क्या, देखो मैं प्रिमिटिव, यानी मेरा मेरा जो है वो सारा फिक्स है। तो सबसे पहले जब भी मैं उठूंगा सवेरे, तो मेरे को चाहिए चाय, चाय चाहिए। चाय यानी पिए वगैरह मेरे को जमता नहीं। सबसे पहला नेचर मेरा चाय है। फिर बाकी मेरा एक्स वाई जेड काम करूंगा मैं, फिर वो करूंगा एक्स करूंगा, एक्स वाई जेड करूंगा, सारे जो टास्क है मेरे सारे प्रिमिटिव है, सारे फिक्स है। सारे मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली है कि मेरे को भाई ये करना है, दिन सवेरे उठने से रात तक मेरे को ये काम करना है। जैसे कंपनी में, जैसे एज आई एम वर्किंग, तो मेरे को भी एक टास्क मिलता है, तो भाई आपको ये करना है, ये पहले से प्री डिफाइंड है।
ओके, तो सारे का सारे जो चीजें होती है आपके शेड्यूल में, आप जैसे टू डू लिस्ट बनाते हो तो आप प्री डिफाइन कर देते हो, भाई ये चीजें हमें करनी है, ये चीजें करनी है। ओके, जैसे कॉलेज वाले एक करिकुलम लाते हैं तो आपको ये प्रिमेटिव करना है, ये करना ही है, ये इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो प्री डिफाइंड है। जैसे हमारा जो एजुकेशन है वो प्री डिफाइंड है भाई, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, टेंथ तक आप डायरेक्टली फर्स्ट से टेंथ में तो जम नहीं मार सकते, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। यूजर डिफाइन का बोलता है, अरे भाई मैं नहीं करता, मैं करूंगा ही नहीं। यूजर डिफाइन बोलता है कि मेरे को जो लगेगा मैं करूंगा, मेरे को जो लगेगा मैं करूंगा, मेरे को कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं, मेरे को जैसा मैं मन चाहूँ वैसा करूंगा। वो होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारा उसका पहले से सेट होता है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता करने लायक, वो बस बेचारा इस प्री डिफाइंड जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें फंस जाता है। इसलिए कंफर्ट में बिल्कुल मत जाना, अगर आप कंफर्ट में गए तो आप प्री डिफाइंड बन जाओगे। कंफर्ट यानी एक ही एक चीज बार बार कर रहे हो, तो इफ यू आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू आर गोइंग अ प्रिमिटिव स्टेट। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, यू आर डूइंग समथिंग न्यू एवरी डे, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, लर्निंग समथिंग न्यू। यू आर नॉट प्री डिफाइंड कि आप ऐसा ही करोगे। आज हो सकता है कि आप इस तरह से बिहेव करते हो, आज कुछ महीने बाद आप अलग तरह से बिहेव करने लगते हो, तो आपका जो नेचर है वो प्री डिफाइंड नहीं है। कोई आके बोल नहीं सकता कि सपोज सृष्टि है कि वो बहुत अच्छे सिंगर बनने वाली है फ्यूचर में, बोल दिया उन्होंने, ओके, कि सृष्टि बहुत अच्छी सिंगर बनने वाली है इन फ्यूचर। बस सृष्टि को प्री डिफाइंड नहीं चाहिए, बोलेंगे बाबा जी मुझे नहीं बनना है क्रिकेटर, मुझे सिंगर बनना है। उसको वो करना है, जो करना है वो करेगी, यानी प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही सेट है भाई, कि आपको क्या करवाना है, क्या करना है, ये सारी चीज पैरामीटर्स में सेट है, इसमें नहीं है सेट। इसमें आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, आप ट्राई करो, आपको जो करना है आप इसके अंदर कर सकते हो, आप खुद से इसको क्रिएट कर सकते हो, प्री डिफाइंड नहीं है इसके अंदर। तो ये होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं गाइस, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, विच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। क्या होता है प्रिमिटिव, which is already देखो, अभी अगर आपको इतना समझ लो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आगे मैं जैसे हम एक दो सेशन कल के सेशंस में आपको ये इतना ये मैं जो ज्ञान अभी दिया, इसमें आपको कुछ ज्ञान समझा, कुछ ज्ञान नहीं समझा, बट जब नेक्स्ट सेशन में आप स्विच करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझेगा। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि इसमें कोई ये नहीं है आप क्या ये डाल सकते हैं, यानी यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, यूजर के ऊपर डिपेंड है, मेरे के ऊपर डिपेंड है, मैं कुछ भी कर दूं। मैं चाय में चीनी के अलावा नमक डाल दूं, कोई कौन बोल पा रहा है, मैं नॉन प्रिमिटिव, मैं कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम यूजर डिफाइंड, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो ये होता है यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव और एंड नॉन प्रिमिटिव। सो व्हाट इज प्रिमिटिव गाइस, primitive are those data type which is a already, which is a predefined, it is a predefined, the data type which is already predefined। primitive data type का क्या definition होगा, which is already predefined, समझ में आ रहा है, which is already predefined by java, समझ में आ रहा है। what is primitive data types, which is already predefined by Java. which is already predefined, very good। then second one is non primitive। प्रिमिटिव क्या होता है, देखो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा व्हाट इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोला तो बोल देना यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोस डेटा टाइप व्हिच इज अ प्री डिफाइंड। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव क्या है, यूजर डिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव क्या है, वन सेकंड एवरीवन, हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप वी हैव, Two फर्स्ट वन इज, types of फर्स्ट data वन type. two types. प्रिमिटिव, सेकंड वन, Non-primitive. फर्स्ट इज, फर्स्ट Primitive. से फर्स्ट, Primitive. फर्स्ट फर्स्ट, Primitive. सेकंड, Primitive. Primitive. Non-primitive. Primitive. सेकंड नॉन प्रिमिटिव, फर्st, Primitive. second, Non-primitive. second, Non-primitive. first, Primitive. first, Primitive. second, Primitive. Non-primitive. second, Non-primitive. second, Non-primitive. 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 second, Non-primitive. first, Primitive. what is Primitive. primitive, what is primitive, Which is already which is already predefined, it is a predefined data types। primitive data types is what, it is a predefined data types। what is primitive, predefined data type, Primitive. predefined, one second, what is primitive, Which is predefined already data type, predefined. already predefined by Java. yeah, already predefined, okay। so primitive data types are those data type which is a predefined। देखो
प्रीमिटिव का मतलब होता है, प्रीमिटिव किसी ने पूछा व्हाट इज प्रीमिटिव डेटा टाइप्स, इट इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. व्हाट इज प्रीमिटिव गाइस? It is a predefined data. Predefined data types. Okay, so first is type of data Primitive. type. Primitive data type. Very good. First is primitive. What is my primitive, Samiksha? Primitive data type is predefined by Java. Primitive data types is predefined data types. क्या बोलो? Primitive data types is predefined data type. क्या है primitive data types? Predefined data type. Predefined data type. Once again, guys, what is primitive data types? Primitive data type is a predefined data type. Predefined. Then what is non-primitive data types? User defined data type. What is non-primitive? User defined. User defined. Once again, what is non-primitive? User defined. Non-primitive data. Non-primitive It's a data. Very good. non-user You are very smarter than me. No, you are not smarter than me. I am very smart. Okay, so that is primitive and non-primitive. Now let's go. अब मैंने last time आपको बताया था what is variable, guys? Variable is a name given to the memory location. Yes, what is variable? variable is a name given to the memory location. Very good. Memory is a name given to the memory location. Yes, very good, very good, very good, guys. You are very smart. Not no smart, not more than me. Okay, so we have a variable which is a number. Variable means a variable name number, a variable name number, and data is 100. Inside a variable we have stored the 1000 data. And inside जब भी आप variable बनाएंगे तो it will take a space inside a memory, right? Isn't it? It will take a space inside a memory, right? That's why what we say variable is a. Yes, please. What is variable? Variable is a name given to the memory location. Yes. location. आपको ऐसा ट्रेन करूंगा ना, आपको किसी ने भी पूछा तो आपके आंसर जल्दी जल्दी आएंगे. देन ये तो मैंने बात कर ली, बट मुझे पता है कि मेमोरी में हर स्पेस का एक वैल्यू होता है. जैसे आप एक मूवी डाउनलोड करोगे, ओके, जैसे मैंने एक मूवी देखा, सपोज आई हैव डाउनलोडेड मूवी लाइक पीके, ओके, नॉट पीके, पीके. आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पीके, गाइस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीके? Yes. What is the full form of PK? Yes. पेला का है. Yes, guys. Do you know what is the full form of PK? Okay, so I have downloaded the PK movie. So it will consume some space, right? 1 GB, 2 GB, 3 GB, isn't it? Yes, guys. Are you getting this? Every data when you store in the memory, it will take some space, isn't it? Yes, Samiksha, Pratiksha, Srusti, Sakshi. Sir. Yes, It sir. will, बट वेरिएबल भी Yes. मेमोरी में स्पेस ले रहा है, बट कितना स्पेस वेरिएबल मेमोरी में ले रहा है. तो यहाँ पे आती है अगली कहानी ये है कि हर वेरिएबल एक स्पेस कंज्यूम करता है. तो ये आपको अभी दिखेगा, देखो. तो जो भी स्पेस है वो कहाँ तक आता है. देखो ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे ये जो रेंज है, देखो एक तो यहाँ पे मिल रहा है स्पेस. तो जो भी हमारा जो स्पेस कंज्यूम करता है वो बाइट में करता है. ओके, जो भी हमारा मेमोरी में स्पेस होता है वेरिएबल कंज्यूम करता है. वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ. तो वेरिएबल जैसे बाइट है हमारा, कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है? 1 बाइट. देखो ये जो रेंज है ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है. मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से हम सारे के सारे जो रेंज है आप खुद से कैलकुलेट कर दोगे. हमें याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इतना सा बड़ा नंबर को याद नहीं रखता. तो बाइट में कितना स्पेस कंज्यूम करता है? 1 बाइट. और 1 बाइट का बिट में कितना होता है? 8 बिट. तो 8 बिट मिलके कितना बाइट बनता है गाइस? 1 बाइट. समझ में आ रहा है गाइस? बाइट मेमोरी में कितना कंज्यूम करता है? बाइट मेमोरी में कितना स्पेस कंज्यूम करता है? 1 बाइट. One byte. 1 बाइट इज इक्वल टू कितना बिट होता है? 8 बिट. 1 byte. 8 bit. 8 बिट. सेकंड, शॉर्ट जो होता है वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 2 बाइट. 2 byte. 2 byte. उसका बिट में कितना होता है? 16 बिट. तो एक बिट अगर अपना 8 हो गया, 2 बिट कितना होगा? 16. 16. देन इंटीजर देखो 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है. ये जो रेंज है इसके ऊपर ध्यान मत दो. रेंज में आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से निकाल लेंगे. बाइट इंटीजर है वो 4 बाइट कंज्यूम करेगा, और उसका बिट में कितना होगा? 4 इंटू 8 इंटू 4 कितना होता है? 32.
हाँ, देन लॉन्ग देखो 8 बाइट कंज्यूम कर रहा है, 8 बाइट का बिट में करेंगे तो 64 आ जाएगा। देन फ्लोट देखो 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट का बिट में करेंगे तो फिर से 32 आ जाएगा। डबल देखो 8 बाइट कर रहा है। देखो ध्यान दो, इंटीजर क्या है, मैंने बताया था आपको एक्स। देखो बाइट और शॉर्ट भी क्या है, देखो बाइट क्या है एक्स, तो बाइट क्या है एक्स, तो शॉर्ट कितना कितना अपना मेमोरी कंज्यूम करेगा। अगर बाइट एक्स है तो शॉर्ट कितना करेगा, टू डबल ऑफ बाइट, 2x 2x, यानी तो यहाँ पे 1 बाइट है तो 2 बाइट आ रहा है। देन इंटीजर कितना कर रहा है, 4 बाइट, तो ये क्या है एक्स, लॉन्ग कितना करेगा, डबल ऑफ द इंटीजर, तो 2x करेगा, तो क्या होगा, ये 8 हो गया, ये सॉरी ये 4 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से देखो ये x है, फिर 8 बाइट कंज्यूम कर रहा है फ्लोट, तो डबल कितना करेगा, उसका डबल, किसका डबल, फ्लोट का डबल, तो कितना आ गया 8, और 8 का बिट में कंज्यूम करेंगे तो ये होगा। फिर कैरेक्टर 2 बाइट कंज्यूम करता है, कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट कंज्यूम करता है, 2 बाइट का करेंगे बिट में तो 16 बिट आ जाता है। देन बुलियन आता है हमारा, बुलियन 1 बाइट कंज्यूम करता है एक मेमोरी में, ओके, मेमोरी में जो बुलियन है ये 1 बाइट कंज्यूम करता है, बिकॉज वी आर स्टोरिंग ट्रू और फॉल्स। देखो जब भी हम ट्रू और फॉल्स को है ना उसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बाइट में ही आता है, ओके। एक्चुअली इसको अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। तो बाइट जो हमारा बुलियन डेटा टाइप्स है, बुलियन है, वो कितना स्पेस कंज्यूम करता है, 1 बाइट। अब बिट में इसका प्रिसाइजली नहीं बताया एक, क्योंकि इसमें बिट में इन्होंने प्रिसाइजली नहीं बताया है, इसको धीरे धीरे समझते हैं। वैसे ही अगर ये थोड़ा नीचे जाए तो मैं आपको कुछ देखो, अब आपको नीचे स्ट्रिंग दिख रहा है, यू कैन सी अ स्ट्रिंग नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड। देखो इसमें सारा, देखो सारे से पहले से प्री डिफाइंड है, 8 बिट आएगा, ये सारी चीजें प्री डिफाइंड है। अब देखो इसमें, देखो स्ट्रिंग में देखो, स्ट्रिंग इज नॉट प्री डिफाइंड, इसमें प्री डिफाइंड है ही नहीं चीजें। इसमें देखो ये जो है रेंज, ये भी सारा प्री डिफाइंड है, इसमें भी प्री डिफाइंड नहीं है। यानी ये होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सारा का सारा पहले से ही प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव में नहीं प्री डिफाइंड भाई। नॉन प्रिमिटिव बोलता है ये प्री डिफाइंड नहीं है, आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। देखो तो यहाँ पे अगर मैं बड़ा करता हूँ तो देखो क्या बोल रहा है वो, देखो आप ही देख लो, मैं कुछ नहीं बोलता। स्ट्रिंग नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड वेरीज बेस अपॉन द कंटेंट, वेरीज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेंथ वेरीज बेस अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। इसमें कोई प्रीडिफाइन नहीं है, कुछ वैल्यू प्रीडिफाइन नहीं है, कुछ साइज प्रीडिफाइन नहीं है, और कितना रेंज है वो भी प्रीडिफाइन नहीं, बिकॉज इट इज ए यूजर डिफाइंड। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस, बताइए इतना yes क्लियर है, ओके। Yes, yes. इसका इसका जो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बस इतना देखो, जो रेंज है वो बिल्कुल भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से डायरेक्ट रेंज कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। हमें रेंज कैलकुलेट नहीं करना है, यानी इतना नंबर हमें ध्यान नहीं रखना है। डायरेक्टली एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से सारे के सारे जो आप रेंज है वो डायरेक्टली निकाल लोगे। अभी इसको सिंपल रखते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। साइज जो है वो साइज अपन ने ध्यान रखना है। अच्छा, बाइट कितना बाइट कंज्यूम करता है, एवरीवन बाइट कितना बाइट कंज्यूम करता है। 1 byte, अच्छा, शॉर्ट 1 कितना बाइट कंज्यूम करता है, 2 2 बाइट। byte, इंटीजर कितना बाइट 2 कंज्यूम करता byte है, 4 byte, 4 लॉन्ग byte 4 कितना करता byte है, 8 8 byte, bytes. 8 फ्लोट byte फ्लोट कितना करता है, 4 4 byte bytes, हाँ। देन डबल कितना करता है, 8 8 bytes, byte कैर कितना करता है, 2 2 bytes, byte 2 2 बाइट। byte 2 Now bytes. I will ask Indulji. Okay. Like Srusti Rangari. Okay. The okay, बाइट कितना करता है, 1 byte, शॉर्ट कितना करता है, 2 byte, 2 बाइट का बिट में कितना होता है, 16, 1 बाइट का बिट में कितना होता है। 8, देन इंटीजर कितना कंज्यूम करता है, uh, 4 बाइट। integer इंटीजर 4 कितना कंज्यूम, byte, हाँ इंटीजर कितना कंज्यूम करता है सृष्टि, 4 bytes, भाई बिट में कितना होता है। 32, देन वंस अगेन लॉन्ग कितना करता है, long होता है 8 bytes, 8 बाइट, बिट में कितना होगा। 64, वेरी गुड। कैरेक्टर में कितना होगा, फ्लोट कितना कंज्यूम करता है, float 8 bytes, 4 बाइट। कितना, 4 bytes sir, 4 बाइट। कितना 4 करता है फ्लोट, 4 byte, बाइट। बिट में कितना हो गया, 4 byte, बीट में 32 हो गया, वेरी गुड। देन डबल में क्या, कितना स्पेस कितना बाइट कंज्यूम करता है, उससे उससे डबल कितना डबल मेरे को नहीं 64 पता, होगा, बिट में 8 बताओ। bytes, बाइट में, बीट में 64 बिट्स होगा, बाइट में, बाइट में 8 bytes, एंड बिट्स में,
64 bits. कितने बिट से एक बिट बनता है? कितने हाँ। कितने बिट से एक बाइट 8 बनता है? 8 बिट से एक बाइट बनता है। वेरी गुड। देन सृष्टि सृष्टि S2 बताइए। हाँ, बाइट कितना कंज्यूम करता है? 1 बाइट, ओके, एंड 1 बाइट का कितना बिट होता है? 8 बिट. हाँ, 8 बिट का अरे कितना मी तर बाइट होता है? सांगितलं बाई. हम्म, सृष्टि, काय सर? 8 बाइट का कितना, 1 बिट का कितना बाइट होता है? 8 बिट का 1 बाइट होता है. अच्छा, और 16 बिट का कितना बिट, 16 बिट का कितना बाइट होता है? 2 बाइट. कितना? 2 बाइट. कौन 2 बाइट कंज्यूम करता है? सॉर्ट. सॉर्ट। देन इंटीजर कितना कंज्यूम करता है? इंटीजर 32 बिट्स. बाइट बताओ, बाइट कितना कंज्यूम करता? 4 बाइट कितना कंज्यूम करता? इधर जल्दी, हाँ, कितना कंज्यूम करता है इंटीजर? जल्दी। ए, क्या, कहाँ पे हो? इंटीजर कितना कंज्यूम करता है, बाइट बताओ। हम्म, जल्दी। सृष्टि S2 जल्दी। हम्म, यस। प्रसिक, बाइट कितना बाइट कंज्यूम करता? 1 बाइट. 1 बाइट। शॉर्ट कितना करता? 2 बाइट. हाँ, 1 बाइट का कितना बिट होता? 8. 1 बाइट का कितना बाइट होता? 1 बाइट का 8 वन 8. बाइट का कितना बिट होता है? 1 बिट, 8 बिट। देन शॉर्ट कितना कंज्यूम करता? बाइट 16. 16। अच्छा, और बिट कितना कंज्यूम 6 करता शॉर्ट? 2 बाइट में 16 बिट कंज्यूम करता. 2 बाइट में 16 बिट कंज्यूम करता है। ओके, सो एंड लाइक इंटीजर कितना बाइट कंज्यूम करता? 4 बाइट. 4 बाइट। 4 बाइट का बिट में कितना होता? 32. 32। देन लॉन्ग कितना कंज्यूम करता है बाइट? लॉन्ग 8. 8 8 बाइट का बिट में कितना हो गया? 64. 64। देन फ्लोट कितना कंज्यूम करता? 4. 4 का बाइट बिट में कितना हो गया? 8. 32 का बिट, सॉरी, 32। 32 32. 32 बाइट का बिट में कितना हो गया? 32 बाइट का बाइट, 32 बिट्स का बाइट में कितना हो गया? 4. 4। देन डबल कितना कंज्यूम करता? डबल 8 बाइट. 8 बाइट का बिट में कितना है? 32. सॉरी, 32। 64. 64। देन कैरेक्टर कैरेक्टर 2 बाइट 2 कितना? बाइट. 2 2. बाइट कैरेक्टर कितना? 2 बाइट. 2 बाइट। 2 बाइट का बिट में बताओ। 16. स्ट्रिंग कितना कंज्यूम करता? स्ट्रिंग 4 बाइट. हम्म, नॉट प्रिसाइजली हम नहीं बता सकते। इट इज नॉट प्रिसाइजली हाँ. डिफाइंड। क्या आप ये, वी कैन से 4 बाइट, हाँ. इट्स फाइन। अब यू हैव सेड राइट, बट प्रिसाइजली नहीं बता सकती, इतना ही है। बिकॉज आप कितना लंबा स्ट्रिंग स्ट्रिंग उसमें स्टोर करवा रहे, उससे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है प्रसिक? यस यस. हाँ प्रतीक्षा फर्स्ट, हाँ जल्दी बताओ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कितना बाइट और बिट में, जल्दी जल्दी वन बाय वन बताइए। चलो समीक्षा स्टार्ट, सॉरी प्रतीक्षा। फर्स्ट बाइट में वन वन बाइट 8 बिट, शॉर्ट में 2 बाइट 16 बिट, उसके बाद इंट में 4 बाइट 16 बिट, देन 4 बाइट 16 बिट लॉन्ग कैसे में, आएगा? यस सर, 4 बाइट का 16 बिट कैसे आएगा? 32 बिट सर. हम्म, लॉन्ग में x 2x x 2x x 2x x। ओके, यस सर, बताओ लॉन्ग। लॉन्ग में 8 बाइट 64 बिट, हम्म, उसके बाद फ्लोट में 4 बाइट 32 बिट, एंड डबल में 8 बाइट 64 बिट, देन कैरेक्टर में 2 बाइट 16 बिट,
एंड स्ट्रिंग में हम डिफाइन नहीं कर सकते सर. बट व्हाट वी कैन से, अगर किसी ने पूछा सर वी कैन से 4 बाइट बट नॉट प्रिसाइजली डिफाइन. ओके, यस सर, यस सर. देन साक्षी चिमुरकर 1 बाय 1 बताओ, जैसे प्रतीक्षा ने बताया. देख के नहीं है. बाइट 1 बाइट यानी 8 बीट, शॉर्ट 2 बाइट यानी 16, 1 बाइट इज 1 बाइट एंड 8 बाइट. शॉर्ट में 1 बाइट इज 2, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट थोड़ी होता है. बाइट में बताया सर, बाइट में 1 बाइट यानी 8 बीट बताया था. हाँ, तो शॉर्ट में शॉर्ट में 2 बाइट यानी 16 बिट. हाँ, देन इंट में 4 बाइट यानी 32, लॉन्ग में 8 बाइट यानी 64 बिट. देन फ्लोट x 2x x 2x x 2x x. पहले सबसे पहले बाइट x 2x x बाइट और शॉर्ट, देन इंटीजर x लॉन्ग 2x, देन फ्लोट x 2x, देन x कैरेक्टर. समझ में आ रहा है? x 2x x 2x x पकड़ में आ गया? हाँ. हम बताओ. देन लो. फ्लोट में 4 बाइट यानी 32 बीट, हाँ डबल में 8 बाइट यानी 64 बीट, हाँ कैरेक्टर में 2 बाइट यानी 16 बीट्स, हाँ. और स्ट्रिंग में 4 बाइट लेकिन प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते. क्यों नहीं नॉट कर, डिफाइन, क्यों नहीं कर सकते? मतलब उसके आगे मतलब क्या, आगे मतलब क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज यूजर डिफाइन, इट इज नॉट अ प्री डिफाइन. साक्षी समझा? प्री डिफाइंड में हाँ सारा सर. डिफाइंड होगा ना पहले से, कितना रेंज आएगा, कितना स्पेस आएगा, सारा. बट स्ट्रिंग क्या प्री डिफाइंड है? क्या नहीं है. इट इज अ नॉन User defined. नॉन की प्रिमिटिव, नॉन नॉन प्रिमिटिव की प्रिमिटिव, नॉन प्रीमियम. नॉन प्रिमिटिव. हाँ सिया वंस अगेन बताओ जल्दी एवरीवन. बाइट मीन्स 1 नहीं 1 बाइट 8 बीट एंड इंट में 2 बाइट 1 बाइट, एक मिनट 16 एक मिनट 1 बाइट, बाइट से इंट में कैसे, बाइट से डायरेक्ट इंटीजर है क्या? शॉर्ट. हाँ बताओ जल्दी. फर्स्ट बाइट से, शॉर्ट अरे बाइट, बाइट तो लो पहले. बाइट में 1 बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट, देन 2 बाइट, देन शॉर्ट शॉर्ट में 2 बाइट, देन इंटीजर, इंटीजर में 4, हाँ बिट में 8, देन लाइक बताओ आगे. लॉन्ग में 8, फ्लोट में 4 बाइट, बिट में भी बताओ. हाँ साइमल्टेनियसली. 4 बाइट मीन्स 32 बीट, हाँ एंड डबल में 8 बीट, 8 बाइट मीन्स 64 बीट, हाँ एंड कैरेक्टर में 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट. हाँ. और स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में बिट नहीं यूज करते. स्ट्रिंग में बिट नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? इट इज अ नॉन, इट इज नॉट डिफाइंड, कि आप डिफाइन नहीं कर सकते. ओके चलो, वेरी गुड गाइस. सो टुडे वी हैव सीन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, कि कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, कितना ये कर रहा है. दूसरी चीज, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फास्ट नहीं करना है बिल्कुल. धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और रिवीजन हम रोज करवा रहे हैं आपसे, ताकि आपको जो भी चीजें वो समझ में आ रही है. नाउ फॉर द नाउ देयर इज अ टाइम फॉर योर